Good morning, student. Today we are going to read the book Snapshot. As you know, I have already told you that there are two books in your class course. First book name is Hornbill and second book name is Snapshot. In first book, in Hornbill, you will read about prose poetry section, and in second book in Snapshot you will read about supplementary stories and etc. I have already completed 3 chapters of first book of Hornbill, The Portrait of a Lady, We Are Not Afraid to Die, and Discovering Truth. The saga continue. Now today I am going to start chapter number first of Snapshot. The chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. First of all, we will read about the author of this story. The author of this story is William Saroyan. William Saroyan was born on 31st August 1908. He was an American novelist. He was awarded for his great works many times. He was assist also. He was married to actress Carol Marcus. He left this world forever to heaven on 18th May 1981. Before starting the chapter, I would like to tell you about this lesson also. This is an interesting adventure story of two poor Armenian boys. The writer said that this is an interesting adventure story. राइटर कह रहा है यहाँ पर कि ये जो कहानी है ये बहुत ही इन्वेंटरस स्टोरी है दो गरीब आर्मेनियन बच्चों की who belong to a tribe known its trust and honesty. और वो एक ऐसी ट्राइब से, एक ऐसे कबीले से या ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो अपनी ईमानदारी और अपने विश्वास के लिए जानी जाती है. दे आर कजिन्स आराम एंड मुराद. वो दोनों चचेरे भाई थे. एक का नाम आराम था और एक का नाम मुराद था. मुराद वाज अ डैशिंग बॉय हु सेड प्राउडली. मुराद जो था बड़ा डैशिंग लड़का था और वो हमेशा गर्व से कहता था दैट ही हैड अ वे विद द हॉर्सेस डॉग्स एंड फार्मर्स. कि हमें घोड़ों के साथ, कुत्तों के साथ और किसानों के साथ जीने में अलग आनंद आता है. बोथ लव्ड राइडिंग. दोनों को घोड़सवारी करना बड़ा पसंद था. बट देयर फैमिली कुड नॉट अफोर्ड अ हॉर्स. लेकिन उनके परिवार में कोई घोड़ा नहीं था कि वो घोड़े को अफोर्ड कर सकें, खरीद सकें या अपने पास पाल सकें. लेट्स नो व्हाट हैपेंड टू बोथ ऑफ देम. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and the mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I could not believe what I saw. It was morning. It was not morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. I know my cousin Murad enjoyed
being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longing had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that would not permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Garganian family was living in the most amazing and the comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest next, and after that we believe in the right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Consequently, even though I see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. And if he could not have bought it, he must have stolen it. And I refused to believe he had stolen it. No member of the Gregorian family could be a thief. I stared first at my cousin and then at the horse. There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said, if you want to ride. It was true then, he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not, as I choose. Let's explain the chapter. One day back there in the good old days. एक दिन की बात है, पुराने दिनों को याद करते हुए राइटर कह रहा है वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। पुराने दिनों की बात है, पुराने दिनों को याद करते हुए कह रहा है व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड द मिस्टीरियस ड्रीम। मैं जब 9 साल का था और संसार जो है, ऐसा लगता था छोटी सी उम्र में संसार बहुत सारी चीज़ों से, भावनाओं से, उम्मीदों से, सुखद वस्तुओं से भरा पड़ा है, और ये मेरे लिए एक सपना था। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, मेरा एक चचेरा भाई था जिसका नाम था मुराद, और उसको पूरी फैमिली, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, पूरी जो कम्युनिटी थी, पूरी जो कबीला था, जो ट्राइब थी, उसको पागल समझती थी। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और मेरे अलावा कोई उसे अच्छे से नहीं जानता था। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, मेरे घर आता है सुबह के 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरी खिड़की पर हाथ हिलाकर या पुश करके मुझे आवाज़ देता है। टैप करना मतलब कि ऐसे मारना। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम,
मेरी खिड़की पे खटखटाता है हाथ से, आराम ही सेड, और मुझसे कहता है आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं तुरंत बिस्तर से उठ गया और खिड़की की तरफ मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा। मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हो पाई थी, बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक, और ये दिन, ये जो था गर्मियों का समय था, और गर्मियों के समय विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन इतनी रोशनी थी दिन के किसी कोने से, दिन के किसी ब्रेक से, इतनी सी झलकियाँ किरणें आ रही थी जिससे ये महसूस कर सकता था, मैं ये बता सकता था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मैंने क्या देखा खिड़की के बाहर, मेरा चचेरा भाई जो मुराद है, ये जो स्टोरी बता रहा है ये आराम है, और जो हॉर्स पर बैठा हुआ है मुराद, वो इनका चचेरा भाई है और वो घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैं तुरंत मैंने अपना सर जो है खिड़की के बाहर निकाला और अपनी आंखों को मलाया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि मेरा चचेरा भाई घोड़े पर बैठा हुआ है, सुंदर सफ़ेद घोड़ा। यस ही सेड इन आर्मेनियन इट इज़ अ हॉर्स। जब मैंने घोड़े को और अपने चचेरे भाई को जो है बैठे हुए देखा, घोड़े को देखा और उसके ऊपर चचेरे भाई को बैठे हुए देखा, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मेरा चचेरा भाई मुझसे कहता है हाँ ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो, जल्दी से तैयार होके आओ बाहर। आई न्यू माई कज़िन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव more than anybody else who had ever fallen into the bird by mistake। मैं जानता था कि मेरा भाई किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले, किसी दूसरे व्यक्ति के कंपेयर में, तुलना में जीवित रहने का अधिक आनंद लेता था। वो लोग उन लोगों से अधिक आनंद लेता था जो लोग fallen into the bird by mistake, इस संसार में गलती से आ गए थे। ऐसा मानता है, आराम का मानना यह है कि बहुत सारे लोग बाई मिस्टेक इस संसार में आ गए हैं, गलती से आ गए हैं, और वो इस जीवन का आनंद नहीं लेते हैं, कष्टमय अपने जीवन को समझते रहते हैं। एवरी मोमेंट जो लाइफ का होता है चीयर करिए, उसको एंजॉय करिए, अच्छे से जिया जाए। वही कहना था आराम का कि मेरा भाई दूसरे लोगों के कंपेयर में, तुलना में अधिक आनंद लेने वाला, जीवन को जीने वाला उन लोगों की तुलना में जो लोग इस संसार में बाई मिस्टेक यानी गलती से आ गए। बट दिस वाज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। लेकिन ये उससे भी अधिक था जिस पे मैं विश्वास कर पाता, मुझे विश्वास हो पाता, उससे भी बियॉन्ड था, उससे भी ऊपर था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। पहली बात तो यह है कि हमेशा से मैंने ये सोचा था कि मैं घोड़े की सवारी करूँगा, घोड़ा मुझे बहुत पसंद था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरा यही सपना था, यही आशा थी, यही उम्मीद थी कि मुझे जो है घोड़े की सवारी करनी थी। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, और यही सबसे अच्छी बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। लेकिन दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हम लोग गरीब थे, बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। और यही वो हिस्सा है, यही वो बात है, यही वो दूसरी बात है कि हम लोग गरीब थे। ये गरीबी वाली बात ये हज़म नहीं हो रही है, यानी कि हम लोग को ये बिलीव नहीं हो रहा है, मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा, आराम कह रहा है कि मेरा भाई घोड़े पर बैठा हुआ। पहली बात तो ये है कि वो घोड़ा की सवारी करना बड़ा पसंद था, लेकिन दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग गरीब थे, और गरीब होने की वजह से ये यकीन नहीं हो पा रहा था, ये विश्वास, ये ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से मेरा भाई घोड़े के ऊपर बैठ सकता है। जो हमने देखा विच ऐसा, जो मैंने देखा, वाट ऐसा, जो मैंने देखा, उस पर यकीन नहीं। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। हम लोग गरीब थे और हम लोग के पास कोई पैसे
नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, और हमारा पूरा कबीला जो है गरीबी से जूझ रहा था। एवरी ब्रांच ऑफ द गर्गोरियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग इन द कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और पूरा गर्गोरियन फैमिली, जितनी भी गर्गोरियन फैमिली थी, वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग इन द कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। बहुत आश्चर्य तरीके से, बहुत ही कॉमिकल पॉवर्टी यानी कि एक हास्यास्पद गरीबी जो होती है, कॉमिक जानते हैं आप, हंसी आए इस चीज़ पर। पॉवर्टी इन द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा विख्यात थे ये लोग। गर्गोरियन फैमिली एक ऐसी गरीबी से गुजर रही थी जो हास्यास्पद है, यानी कि बड़ी हंसी आती होगी लोगों को इस तरह से। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। कोई भी नहीं जानता था कि हमारे परिवारों का, हमारे कबीले का, हमारे घरों का किस तरह से भरण पोषण होता है, किस तरह से हम लोग के पेट में खाना जाता है, किस तरह से हम लोग अपने पेटों को भरते हैं। बैलीज यहाँ शब्द आया है, पेट। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बूढ़े भी, यहाँ तक कि परिवार के जो ओल्ड एज पर्सन थे, उन लोगों को भी नहीं पता था कि परिवार का जो भरण पोषण है वो कहाँ से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, फिर भी हम सब लोग ईमानदारी के लिए बड़े फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 1100 वर्षों से फेमस थे। आज से 10, 20, 15, 30 साल से की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे सिंस अबाउट 11th सेंचुरी, 1100 वर्ष। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world। और जब हम लोग कभी अमीर भी हुआ करते थे, 11 सेंचुरी से पहले की बात है या बीच की बात है, जब हम लोग के पास बहुत पैसा होता था, वेल्दिएस्ट अमीर होते थे हम लोग, तो भी हम लोग इसी तरह के होते थे। हम लोग ईमानदारी के लिए फेमस होते थे और हम लोग संसार के बारे में ही सोचते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। पहले हम लोग अपने ऊपर नाज करते हैं, गर्व करते हैं, उसके बाद ईमानदारी की बात होती है, यानी कि हम लोग की ईमानदारी के ऊपर भी हम लोग को इतना विश्वास है कि हम लोग नाज करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद बिलीव करते हैं क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टिल। और हम लोग, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हम में से किसी ने भी कभी भी किसी भी व्यक्ति का लाभ या फ़ायदा नहीं उठाया। लेट अलोन स्टिल, चोरी तो दूर की बात है, फ़ायदा ही नहीं उठाया। तो ईमानदारी के लिए ये परिवार फेमस था। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैनी, और उसी क्रम में इवन दो आई कुड सी, यद्यपि मैं देख रहा था घोड़े को, आई कुड सी द हॉर्स, में घोड़े को देख सकता था, सो मैग्निफिशेंट, बड़ा शानदार घोड़ा। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी खुशबू भी सूंघ सकता था। सो लवली, बहुत ही शानदार, बहुत प्यारी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी सांसों को लेने को की आवाज़ भी सुन सकता था। सो एक्साइटेड, बड़े उत्सुक करने वाली। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, और मुझे नहीं लगता था कि वो घोड़ा मुराद के साथ कुछ करने वाला है, और वाट मी, या मेरे साथ कुछ करने वाला है, और विथ एनी अदर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, या परिवार के और किसी लोगों के साथ कुछ करने वाला है। और मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो घोड़ा मुराद का था या मेरा था या परिवार के किसी अन्य सदस्य का, क्योंकि हम लोग गरीब थे और हम लोग के पास इतने पैसे नहीं थे, तो घोड़ा आना तो बहुत दूर की बात है। अस्लीप अवेक, आधा सोया आधा जगा, सोया या जगा, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बाउड द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद उस घोड़े को नहीं खरीद सकता है।
एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बाउट इट, और यदि वो घोड़े को नहीं खरीद सकता, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने ज़रूर इस घोड़े को चुराया होता। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात से, आई रिफ्यूज़ टू बिलीव, इस बात से मुझे यकीन नहीं कि उसने चुराया होगा, क्योंकि हम लोग तो ईमानदार फैमिली के हैं। जब घोड़ा हमारे परिवार में से किसी का भी नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है, कोई भी सदस्य का नहीं है, ना मुराद का है, ना हमारा है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, हम लोग गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए अबाउट 11वीं सेंचुरी से हम लोग फेमस हैं, तो कैसे यकीन करें कि ये घोड़ा किसका है? तो फिर इसने चुराया होगा। लेकिन इस बात पे भी यकीन नहीं है कि इसने चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली कुड बी थीफ, ग्रेगोरियन फैमिली का कोई भी सदस्य कभी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने कज़िन की तरफ देखा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर उस घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पियस स्टिलनेस, एक शांति प्रवेश करती है अंदर, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, हम में से दोनों के अंदर वो शांत, मैं भी शांत, मैं कभी मुराद को देखूं, कभी घोड़े को देखूं, समझ नहीं आ रहा था ये घोड़ा आया कहाँ से। एक तरफ तो लग रहा था कि बड़ा शानदार घोड़ा है, एंड अदर फ्राइटन में, और दूसरा ख्याल ये आता था जो मुझे डरा जाता था। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद ये बताओ तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लेप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा खिड़की से कूद जाओ यदि सवारी करना चाहते हो। मैंने उससे पूछा कि तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है, तो वो क्या बोला, लेप आउट ऑफ द विंडो इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो तुम खिड़की से कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन, उसके बाद ये बात सच साबित हो गई, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़ा कहीं ना कहीं से चुराया। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसमें अब कोई संदेह नहीं बचा था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वो मेरे पास आया था इसलिए वो कह रहा है कि मैं चुन सकूं कि तुम्हें सवारी करनी है या नहीं, ये मत पूछो कि मैंने घोड़ा चुराया कि नहीं चुराया। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all if you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were. It was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped out on the horse behind my cousin Murad. Well, it seems to me stealing a horse. अब ये आराम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing. आराम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से आराम कह रहे हैं कि राइडिंग के लिए घोड़े का जो लगाव है, थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, मेरे हिसाब से घोड़े का राइडिंग के लिए, सवारी के लिए चुराना वो चोरी नहीं है जैसी चोरी पैसा या और कुछ चुराने के लिए की जाती है। कह रहे उसके तुलना में ये चोरी चोरी नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का शौक़ था राइडिंग करना, और राइडिंग के लिए हम लोग ने घोड़ा चुरा लिया। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और कह रहे मैं जितना जानता हूँ ये चोरी चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद, यदि आप पागल हैं घोड़ों के लिए जिस तरह से मैं और मेरा चचेरा भाई मुराद पागल था, एंड आई वर, और मैं पागल था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो ये चुराना चोरी नहीं है। आराम के हिसाब से घोड़े को चलाने के लिए, सवारी करने के लिए, उस पर मज़ा लेने के लिए, जिस तरह से वो लोग पागल थे घोड़े की राइडिंग करने के लिए, हॉर्स राइडिंग करने के लिए, तो उसके लिए चुराना चोरी नहीं है। कह रहे तुलना करी जाए अगर और चीज़ें चुराने की, पैसा चुराने की, वो चोरी है, लेकिन अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई चीज़ चुराना ये चोरी नहीं है। क्या डिस्क्राइब किया है इन्होंने? इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल हॉर्स, कह रहे जब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम लोग घोड़े को बेच न दें।
अगर हम लोग घोड़े को बेच दें तो वो चोरी कहलाएगी, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नॉट एवर डू, और हम जानते हैं कि हम घोड़े को बेचने वाले नहीं हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, मैंने मुराद से कहा अरे थोड़ा मुझे कपड़े अपने चेंज कर लेने दो, कपड़े बदल लेने दो, फिर मैं आता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी से कपड़े बदल के आ जाओ। आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, मैं तुरंत खिड़की से आंगन की तरफ कूदा, फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड आउट ऑन टू द हॉर्स, और जल्द से जो है छलांग लगाता हुआ घोड़े पर बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद के जस्ट पीछे बैठ गया। That's the end of the lecture today. I hope you like the video. If you have any problem, comment in the comment box. Thank you.